Hi everyone, welcome back to NoSketch. So let's solve today's daily lead code challenge, and the question is sort characters by frequency. So let's first read the problem statement and then we'll see how we can solve this problem. So given a string s, sort it in decreasing order on the frequency of the characters. The frequency of the character is the number of times it appears in the string. Return the sorted string. If there are multiple answers, return any of them, right? So let's try to understand the problem statement with the help of one example. So question says you will be given a string s and we want to sort the characters of this string based on the frequency of the character, right? So first let's write the frequency. So a has a frequency of 1, 2, yes. So a has a frequency of 2, b has a frequency of 1, 2 and 3, c has a frequency of 2, this one and this one, d has a frequency of 1, s has a frequency of 1, right? So we want to sort the character of this string based on the frequency, right? So first of all, b has a higher frequency, so b is going to come first. Now we have a and c. So the question says if there are multiple answers, you can return any of them. So it can start with aa or answer can be this as well, right? Now cc and aa. Now we have two characters d and s which have the same frequency. So either d comes first, s will come later, or s will come first and d will come later, right? So these answers are possible. So any of them we can return. This is the requirement of the problem statement, right? So any of these strings can be the output, राइट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स हर एक कैरेक्टर को सॉर्ट करके एक नई स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, राइट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो फर्स्ट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फ्रीक्वेंसीज, we'll have to create a map, right? In the previous videos also I have already told you how to create a map, right? So we'll quickly create this map based on the frequencies, where a has frequency 2, b has frequency 3, c has frequency 2, d has frequency 1 and s has frequency 1, right? Now because we want to fetch this particular character first because it has a higher frequency, then I want to fetch this particular character because it has second highest frequency, then c, or maybe c first, a later, then d and then s. This should be the order of characters I'll need to sort the string, right? तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मुझे पहले ये वाला कैरेक्टर चाहिए, देन ये. तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमें इन कैरेक्टर्स को बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी होल्ड करके रखे, राइट. तो हमारे पास इस चीज़ के लिए हमारे पास हीप का कॉन्सेप्ट होता है. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीप, मैक्स हीप और मिन हीप, राइट. सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हीप, मैक्स हीप, मिन हीप, आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज में हीप को समझ सकते हैं कि कैसे हीप काम कर सकता है, राइट. तो जब हम इसका हीप बनाएंगे तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे कि 3, b विल बी ऑन द टॉप, 2, a विल बी below 3, b, then 2, c and then 1, d and 1, s. तो दिस इज मैक्स हीप जहाँ पे कि बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाला टॉप पे होगा, राइट. और यहाँ पे हम जो पॉप ऑपरेशन है, अगर हमें मैक्स चाहिए तो हम ऑफ 1 में कर सकते हैं बिकॉज इट इज एट द टॉप, राइट. तो हमने पहले क्या किया, पहला स्टेप था कि हमने एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया. दूसरा क्या है कि हमने एक मैक्स हीप बनाया with each of these value a, 2, b, 2, c, 2, d, 1 and s, 1, right. Now let's try to understand कि max heap का हम कैसे use करेंगे to sort this string based on the frequency. So first step will be, because हमारा जो max heap है वो टॉप पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को होल्ड करके रख रहा होगा, तो हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे. और जैसे ही हमने डिलीट किया हमारे पास दो चीज़ होंगी, हमारे पास की आएगी और हमारे पास वैल्यू आएगी, राइट. सो की हमारा b होगा एंड वैल्यू हमारी 3 होगी, राइट. तो कुछ ऐसा हमारा मैक्स हीप बन रहा होगा. जब हम उसमें से एंट्री को डिलीट करेंगे तो की हमारा b होगा और वैल्यू हमारा 3 होगा, राइट. तो हम क्या करेंगे कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चला के इसको अपना रिजल्ट स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे, राइट. तो हमने जब ऐसा किया तो हमारा b हो गया. अब जब हमने इसको डिलीट किया तो टॉप पे क्या आना चाहिए, या तो ये. तो लेट्स से 2, c विल कम एट द टॉप. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. नाउ आपका 2, c टॉप पे आया, तो जब 2, c डिलीट होगा तो हमें क्या करना है, आपको एक की मिलेगी, आपको एक वैल्यू मिलेगी. लेट्स से की इज 2,
की सी एंड वैल्यू इज 2, राइट। तो आपको 2 बार लूप चलाना है और इस सी को अपनी रिजल्ट स्ट्रिंग में अपेंड कराना है। तो ये कराने के बाद आपका कुछ मैक्स हीप ऐसा दिखेगा। अब भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है वो टॉप पे रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी टॉप पे क्या है 2, a, तो आप इसको डिलीट करोगे। अगेन आपको एक की मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा की इज ए, वैल्यू इज 2, राइट। तो आप 2 टाइम्स a को अपेंड करा दोगे, 2 टाइम्स आप इस वाले कैरेक्टर को अपेंड करा दोगे, राइट। एंड आपको जो मैक्स हीप बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ अगेन 1, d भी हो सकता है टॉप पे, 1, s भी हो सकता है टॉप पे। अब जो भी टॉप पे है अगेन वो डिलीट होगा, s को अपेंड करा देंगे और अब खाली एक ही एंट्री बचेगी हीप के अंदर विच इज 1, d। एंड फाइनली विल कम एंड विल डिलीट 1, d एंड विल अपेंड इट एंड फाइनली दिस विल बी आवर आंसर, राइट। ये हमारा आंसर होगा। I am again saying कि if you want to understand max heap और min heap in detail, please go through the video जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है to understand it more better, right? Because ये पूरा एक different concept है, तो I would suggest कि please go through that video to understand it because heap से बहुत सारे questions बनते हैं, राइट। एंड मैप वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे हम मैप को बनाते हैं एंड कैसे यूज करते हैं इन द प्रीवियस वीडियोज। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मैप एंड हीप। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी क्रिएटेड अ मैप एंड देन वी क्रिएटेड अ मैक्स हीप। पहला स्टेप हमने मैप बनाया, दूसरा स्टेप हमने मैक्स हीप बनाया। नाउ हमने मैक्स हीप से पॉप करना शुरू किया एंट्रीज को। पहले हमने टॉप एंट्री को पॉप किया, राइट। फिर हमने सेकेंड एंट्री को पॉप किया, फिर हमने थर्ड एंट्री को पॉप किया एंड देन फिर हमने फोर्थ एंट्री को पॉप किया, राइट। एंड देन हमने लास्ट एंट्री को पॉप किया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीप एम्प्टी हो गया। यहाँ पे क्या है, हीप इज एम्प्टी। तो जब तक हीप एम्प्टी नहीं हो जाता हमें लूप चलाना है और हमें की और वैल्यू फेच करनी है, राइट। एंड हमें जितना वैल्यू है उतने टाइम्स की को अपने रिजल्ट में अपेंड कराना है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कोड, राइट। सो लेट्स कोड इट क्विकली। तो हमने क्या बोला कि we'll create a map. So let's create a map first which will include character and character के corresponding it will have the frequency, right? तो let's say हम बोल रहे हैं इसको frequency map, right? New hash map, okay. Now हमें क्या करना है, हमें इस string पे ट्रेड करके हर एक कैरेक्टर के लिए frequency काउंट करनी है। So for char ch s dot to char array dot put ch dot get or default 0 plus 1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी हमें कोई फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है इन जावा वी डू दिस। अदरवाइज मैंने हर बार लिंक अटैच किया है विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया प्लीज गो थ्रू दोज लिंक्स, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम करते हैं इन योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग अ मैप हम क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे या फिर हम एक मैक्स हीप बनाएंगे, राइट। अब मैक्स हीप में हमें 2 चीज़ें चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए और इंटीजर भी चाहिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं एक हीप बनाऊंगी प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। मैप डॉट एंट्री, जो भी इस मैप की एंट्री है मैं उसका बना रही हूँ। नाउ आप C++ में पेयर का बना सकते हैं, आप पाइथन में लिस्ट का बना सकते हैं। तो आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में आपको जो सही लगे आप उसका मैप बना सकते हैं, राइट। बस आपको 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पे to do your calculation which is character and the corresponding frequency, right। तो हमने क्या बोला कि हम मैक्स हीप बना लेते हैं। so this will be your max heap। अब मैक्स हीप बनाने के लिए न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे अपना मैक्स हीप बनाना है, राइट। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर 2 एंट्रीज हैं लेट्स से E1 और E2, अगर 2 एंट्रीज हैं मैप की तो आपको बेस्ड ऑन क्या, मतलब आपको मैक्स हीप बनाना है मिन हीप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो E2 तो हमने इसको बता दिया कि हमें वैल्यू के बेसिस पे एक मैक्स हीप बनाना है। अगर आप यहाँ पे E1 माइनस E2 कर देते, राइट, E1 डॉट गेट वैल्यू माइनस E2 डॉट गेट वैल्यू, तो आपका मिन हीप बन जाता। लेकिन वी वांट कि हमारा जो टॉप पे एंट्री हो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो इसलिए हमने मैक्स हीप यहाँ पे बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस मैप पे ट्रेड करके इसकी हर एक एंट्री को मैक्स हीप में स्टोर कराएंगे। सो फॉर मैप डॉट एंट्री, हर एक एंट्री के लिए मैं क्या करूंगी, मैं प्रायोरिटी क्यू में या फिर मैक्स हीप में इसको पुट करा दूंगी। सो मैक्स हीप डॉट ऐड, इस एंट्री को मैक्स हीप में ऐड करा दो। अब हमें क्या करना है, हमें एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग चाहिए। सो स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। अब मैं कब तक लूप चलाऊंगी, जब तक मेरी मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाती। सो मैक्स हीप डॉट इज एम्प्टी, जब तक मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाती मैं क्या करूंगी, मैं टॉप एंट्री को फेच करूंगी या डिलीट करूंगी फ्रॉम द मैक्स हीप, राइट। एंट्री इज इक्वल्स टू मैक्स हीप डॉट पोल
मैंने टॉप एंट्री को फेच किया, यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, इस एंट्री के पास एक की होगी और एक वैल्यू होगी। की क्या होगा, कैरेक्टर, और वैल्यू क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक फॉर लूप चला लेती हूँ, 0 आई मस्ट बी लेस देन एंट्री डॉट गेट वैल्यू आई प्लस प्लस, और मैं स्ट्रिंग बिल्डर में उसको अपेंड कराती जाऊँगी, एंट्री डॉट गेट की, राइट, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग जब तक आपका जो मैक्स हीप है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, sb डॉट टू स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, इट इज सॉर्टेड स्ट्रिंग and let's try to submit it. Okay, so it is submitted. Now let's try to understand the time and the space complexity, right? So आप first of all क्या कर रहे हो, आप पूरी string पे ट्रेड कर रहे हो। Let's say जो लेंथ है string की वो n है, तो आपने इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा, O of n, बिकॉज आपकी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आपकी क्या है, n है, और आपने उस पर ट्रेड किया टू फिल योर फ्रीक्वेंसी मैप, तो आपने O of n टाइम लिया। ओके, सो नाउ आप क्या कर रहे हो, आप अपने नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर आपने एक मैप बना लिया, तो उस मैप में कुछ एंट्रीज होंगी जो कि 26 इन लोअर केस, 26 इन अपर केस, एट मैक्स इतनी हो सकती है। तो लेट्स से मैं उस नंबर को ऑफ के मान रही हूँ, तो यहाँ से आपको के नंबर ऑफ एंट्रीज मिली, के नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ से आपको मिली, राइट। तो आपको मैक्स हीप बनाने के लिए उन टोटल के एंट्रीज को आपने मैक्स हीप में ऐड किया, तो आपने ऑफ के टाइम लिया, राइट। अगेन मैं आपको दोबारा कहूंगी, अगर आपको प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट समझना है, मैक्स हीप मिन हीप का कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट दैट लिंक टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। तो हम सारी एंट्रीज को हम पुश करा देंगे, तो हमने ओ ऑफ के टाइम लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम अपने मैक्स हीप को, जब तक मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास के एंट्रीज हैं, हर एक के एंट्री के लिए हम कुछ चला रहे हैं, राइट। तो आप जब डिलीट करते हो किसी एंट्री को, तो वो आपका ऑफ वन टाइम लेता है, तो आपको के एंट्रीज डिलीट कर रहे हो, तो ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये के एंट्रीज डिलीट, मतलब ये के एंट्रीज के लिए चल रहा है, राइट। तो आपका के एंट्रीज के लिए चला, तो इसने के टाइम लिया। अब जब आप डिलीट करोगे तो अंदर एक हीपीफाई नाम का फंक्शन होता है जो कि रन होता है, जो कि लॉग के टाइम लेता है, राइट। तो आपका इतना हुआ कि आपने हर एक के एंट्री के लिए उसको डिलीट कराया और हीपीफाई फंक्शन ने लॉग के टाइम लिया। अब आपका ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है कि जो भी आपने एंट्री को डिलीट किया है उसके लिए उसको अपेंड करा रहा है। तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर लूप एटमैक्स कितना चल सकता है। आपके एटमैक्स n कैरेक्टर्स हो सकते हैं, विच इज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इससे ज्यादा ये फॉर लूप कभी नहीं चलेगा, बिकॉज उतने ही कैरेक्टर्स आप अपेंड कराओगे अपनी सॉर्टेड स्ट्रिंग के अंदर जितने आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में है, राइट। सो इट इज गोइंग टू टेक O ऑफ n टाइम, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज टू, क्योंकि आपका ये कितनी भी बार चले, ये आपका O ऑफ n टाइम ही चलेगा, बिकॉज आप n कैरेक्टर्स को अपना सॉर्टेड स्ट्रिंग में फैच करा रहे हो, राइट। आप अपने n कैरेक्टर्स को अपने सॉर्टेड स्ट्रिंग में ऐड करा रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये आपका O ऑफ n टाइम ही चलेगा, राइट। तो इस लूप से हमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, O ऑफ k log k प्लस n, राइट। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो कितनी बनी, O ऑफ n प्लस O ऑफ k प्लस O ऑफ k log k प्लस n, राइट। सो इसका टोटल आपका जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, क्योंकि आप एक प्रायोरिटी क्यू बना रहे हो, राइट, एंड स्ट्रिंग बिल्डर ये एक रिजल्ट है, नीडेड है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ k होगा, विच विल बी नीडेड टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी मैप एंड विद दोज k entries to create a max heap, right? So O of k will be your space complexity, right? और ये जो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू के अंदर लिखा है, इट इज बेसिकली अ कंपैरेटर। हम प्रायोरिटी क्यू को बता रहे हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यू आप क्या करो, आप सॉर्ट कर दो। सो इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि हम कैसे पाइथन में, कैसे हम C++ में और कैसे हम जावा में ये कंपैरेटर लिखते हैं या फिर मैक्स हीप को बनाते हैं using these comparators, I'll create a separate video on the comparators. So please let me know in the comment section if you want me to create a video on the comparators. So I hope you understood this problem. That's it for this video. Thank you.